poem Heaven of Freedom by Rabindranath Tagore. As you all know, Rabindranath Tagore, he was a very versatile person, a composer, a poet and a painter, but mostly he is known as a poet, and he came from a family of painters, composers and writers, and you find a combination of all these arts in his creative work. And his sensitive ear has led to a whole tradition of Ravindra Sangeet that you all know. He was the first Indian writer to be awarded the Nobel Prize. A contemporary of Gandhi, Tagore and a contemporary of Gandhi, Tagore and Gandhi had many interests in common. Though not an active political figure, he was much concerned about the state of the country. His concern for education led him to establish Vishwa Bharati University at Shanti Niketan, a center for arts and ideas. तो ये जो थे टैगोर जो थे वो गांधी के कंटेम्प्रेरी रहे, और यद्यपि ये गांधी की तरह बहुत एक्टिव पॉलिटिकल फिगर तो नहीं थे, लेकिन जो इंडिया की कंट्री की जो स्थिति है उनका उनसे बहुत गहरा जुड़ाव और संबंध और उस कंट्री के प्रति उनकी चिंता रही, और उनका जो एक कंसर्न था एजुकेशन के लिए, उसी के कारण उन्होंने ही वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश विश्व भारती यूनिवर्सिटी. और टैगोर ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील, was very much impressed by other civilizations in the East like the Chinese civilization, and wrote about religion, civilization and nationalism both in prose, essays and his creative work. तो he was a widely travelled person, और इनको ईस्ट की भी सिविलाइजेशंस ने बहुत ज़्यादा सभ्यताओं ने इम्प्रेस किया, और इन्होंने जो है रिलीजन, सिविलाइजेशन और नेशनलिज़म उनके बारे में, इन सिविलाइजेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, नेशनलिज़म के बारे में इन्होंने अपने प्रोज में भी लिखा, एसेज में लिखा और अपने क्रिएटिव वर्क पोएम्स में भी लिखा. अ पोएट, playwright, novelist, his work took up issues of caste, widow remarriage and revolutionary politics amongst other. To him we also owe our national anthem Jan Gan Man. तो उन्होंने ही जनगण, हमारे नेशनल एंथम जनगण मन भी लिखा था, और वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, विडो रीमैरिज के पक्ष में थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, एंड ही हैड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अबाउट बोथ पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन. एंड यू नो ही गॉट रिसीव नोबल प्राइज फॉर हिज collection of poems, Geetanjali. And Geetanjali, as you know, originally written in Bengali and then translated into English by Rabindranath Tagore himself. And this present poem, Heaven of Freedom, occurs as poem 35 in Geetanjali. The poem is very well known about the poet's dream for his country. The poem, expresses Rabindranath Tagore's dream for his country, and it seeks to define freedom, which mainly implies a sense of fearlessness. और इन्होंने, he has talked about the concept of freedom, has tried to define concept of freedom, where he says freedom का मतलब है कि जो है निडरता की, फियरलेसनेस की स्टेट होना, जहाँ हमें किसी प्रकार का भी डर नहीं हो. और जो है उन्होंने ये भी कहा था, ये गांधी जैसे कहते थे कि जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, फियर है, और फियर जब होगा तो हम ट्रूथ को तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, या जो है ट्रूथ को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते. सो द पोएम वॉज written when India was under British rule, and so the Indians were cowed down by fear of punishment during the colonial regime. This one fear prevented them
from growing in intellectual terms or acquiring the dignity necessary for human survival। तो जो इंडियंस की उस समय क्या कंडीशन थी कि वो बहुत ही एक डरी हुई स्टेट से गुजर रहे थे, जिससे कि ना तो उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो पा रही थी और वो उनका जो सेंस ऑफ डिग्निटी थी, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट था, जो आत्मसम्मान की भावना थी, वो भी उनके जो कि बहुत ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वो भी उनके अंदर नहीं थी। सो द पोएट गोज़ ऑन टू एग्जामिन द बैरियर्स दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड religious divisions, the unthinking attitude of millions that makes them victims of their ignorance, and goes on to aspire for a day when the country will be free in every sense and not only political free। तो जो ये पोयम है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसका जो मेन आइडिया है उसमें जो इसका सेंट्रल मीनिंग है वो ये है कि ही इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम। अभी आपने पहले लेक्चर में कबीर पढ़ा, तो ये भी इनका भी जो इन्होंने फ्रीडम को रीडिफाइन किया है उसमें ये है कि हम जो है हमारे जो मानवता है उसमें किसी तरह के बैरियर्स ना हो, रुकावट नहीं हो, ना तो कास्ट के रूप में, ना रिलीजन के रूप में, और ना ही जो है लोगों का जो एटीट्यूड है वो कैसा हो, अनथिंकिंग हो। और क्योंकि अनथिंकिंग एटीट्यूड है उससे जो है या इंसान जो कास्ट रिलीजियस डिवीज़न में जब बटा रहता है तो वो अज्ञान का, इग्नोरेंस का शिकार हो जाता है। तो इन्होंने इस पोयम में एक ऐसे दिन की को एस्पायर किया है, उसकी एक इच्छा व्यक्त करी है जब कंट्री जो है वो हर सेंस में फ्री होगी, सिर्फ पॉलिटिकली फ्री नहीं होगी, बट इट विल बी फ्री इन एवरी सेंस। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, हैंस द रेपिटेटिव बिगिनिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लाइन। तो पोएम जो है वो प्रार्थना के रूप में है और इसीलिए जो है हर लाइन में एक रेपिटेशन है विच क्रिएट्स म्यूजिक। इट कम्स वेरी क्लोज टू गांधीज डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज एज सेल्फ रूल and freedom from bias and prejudice, and expresses a great love for the mother country। तो ये जो पोयम है वो बहुत ही नज़दीक आती है गांधी के फ्रीडम की डेफिनेशन के भी, जब उन्होंने जो स्वराज की बात की, स्वराज मतलब अपने आप पर रूल, और फ्रीडम किसी भी प्रकार के बायस, प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रहों से जो एक मुक्ति होती है, वो उन्होंने उस फ्रीडम की बात की है। इसमें गांधी ने भी करी हिंद स्वराज में और जगह भी, और ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है वो सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से जो है मुक्त होंगे। और ये पोयम जो है उनका एक्सप्रेस कर रही है अपने कंट्री के लिए उनका जो प्यार है, और प्यार बहुत गहरा और महान है। उस प्यार को ये दिस पोयम इज़ expressing his great love for his country, and the poem is in free verse and relies upon the natural speech rhythms and cadences that result from the alternation of stressed and unstressed syllables। तो जो पोयम है वो फ्री वर्स में लिखी गई है और इसमें जो है अपने नेचुरल स्पीच की रिदम है और एक उतार चढ़ाव है, जो कि किससे वो उतार चढ़ाव जो म्यूज़िक पैदा हो रहा है वो किससे है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से है। द पोएट मेक्स गुड यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, dreary desert sand of dead habit and of repetitive sound patterns। तो alliteration क्या होता है, when the same sound is repeated। So here you find a very good example of alliteration, dreary desert sand of dead habit, so repetition of these sound। And now I will take up the first stanza of the poem। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm
टुवर्ड्स परफेक्शन। तो कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि ही इज़ प्रेइंग टू गॉड टू ग्रांट हिज कंट्री सच फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ सुपरस्टिशंस एंड बॉन्डेज ऑफ सोशल ईविल्स विच लीड्स टुवर्ड्स परफेक्शन। तो जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो कंट्री हो उसमें क्या हो, वेयर द माइंड इज़, जो कंट्री में जो लोग रहने वाले हों वो कैसे हों, उनको किसी देयर शुड बी नो फियर, उनके दिमाग में किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनका जो सर है, जो वहाँ के जो पीपल ऑफ माई कंट्री, दे शुड होल्ड देयर हेड हाई, अपना सर जो है वो सेल्फ डिग्निटी के साथ, आत्मसम्मान के साथ ऊंचा रख सकें। और जहाँ पर कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री, यहाँ पर नॉलेज इज़ फ्री के लेयर्ड मीनिंग्स हैं। इट माइट बी नॉलेज फॉर ऑल विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ वेदर द पर्सन कैन पे द फीस और कैन नॉट पे द फीस। और दूसरा जो इसका एक गहरा मतलब है, जो वो मतलब है कि नॉलेज किसी भी तरह के प्रेजुडिसेस से, बायस से, सुपरस्टिशियस बिलीफ से मुक्त हो, वही सही मायने में नॉलेज है, जो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में नहीं ढली हुई हो, बल्कि वो जो है किसी भी पूर्वाग्रह से ऊपर और जो है ऊपर हो, और वही जो है सही मायने में नॉलेज है। अ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन बायसेस एंड प्रेजुडिसेस इज़ नो नॉलेज। तो कह रहे हैं कि वो नॉलेज जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो वास्तव में नॉलेज नहीं है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स पीसेस, टुकड़े। तो वो ही इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज ओन कंट्री, बट ही इज़ टॉकिंग हियर अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एज अ फैमिली, जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की जो है भावना यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ पर कि पूरा संसार ही जो है वो टुकड़ों में नहीं बटा हुआ हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, बाय द आइडिया, Rabindranath Tagore was the one who was against the idea of nationalism, और उन्होंने अपने ऐसे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में बहुत पहले ही कहा था कि दिस इज़ द बिग नेशनलिज्म इज़ द बिगेस्ट डीमन इन द वर्ल्ड, जो कि किसको बांट देगा, संसार को छोटी छोटे दीवारों में जो है वो बांट देगा, जहाँ पर कि जो है कंट्रीज़ के बीच में जो वॉल्स हैं वो खड़ी हो जाएंगी, और फिर नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित होकर के एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो है लड़ाई करेगा, दोस्ती का भाव नहीं रखेगा। तो वी कैन सी दैट दिस idea which he has expressed, which the poet has expressed in the poem, is still very relevant, because in the name of nationalism what is happening all around the world we can see, एक दूसरे के हम दुश्मन हो रहे हैं। So he was against the idea of nationalism, और इसीलिए कह रहे हैं कि वो एक ऐसे कंट्री, उनकी जो इच्छा है वो ऐसी है कि जहाँ पर कि संसार जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा हुआ हो। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स नैरो सिकड़ी हुई, जहाँ पर कि हम कहें कि ये मेरा कंट्री है और वो दूसरा कंट्री है, बिकॉज दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म divides the world into pieces and it breaks up the unity of the world, where words come out from the depth of truth। और कह रहे हैं कि उनकी ये इच्छा है कि उनका कंट्री में जो है क्या रूल करे, फियरलेसनेस रूल करे, और जब भी हम कोई शब्द निकालें तो वो सच्चाई से आए। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फियर, बिकॉज फियर एंड ट्रूथ दे कैन नॉट गो पैरेलल। अगर हमारे फियर है तो हम सच्चाई को व्यक्त नहीं
कर पाएंगे। सो दे कैन नॉट गो अलॉन्ग, फियर एंड ट्रूथ कैन नॉट गो अलॉन्ग। ये जो बात है वो गांधी ने भी कही थी। वी आर टायरलेस, टायरलेस मीन्स कभी न थकने वाली, स्ट्राइविंग यानी एक सर्च, एक कंटिन्यूअस जो एक जर्नी है, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर कि इन्होंने परफेक्शन की बात करी है कि कभी न थकने वाली, स्ट्राइविंग यानी वो बाहें जो है फैली रहें, जहाँ पर कि क्या हो, एक स्ट्राइविंग हो, एक इच्छा हो, एक खोज हो किस चीज़ की, परफेक्शन तक पहुंचने की। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में जो है वो यही बात की है कि माइंड जो है वो एक अपने कंट्री में चाहते हैं कि जो आदमी जो रहे, लोगों के मन में किसी तरह का डर नहीं हो और लोग जो है अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस, सुपरस्टिशंस, फॉल्स बिलीफ, और जहाँ पर कि संसार टुकड़ों में नहीं बटा हुआ हो नेशनलिज्म के नाम पर, और जहाँ पर सच्चाई जो है वो रूल करे, सो दैट मैन हैज़ शुड हैव द करेज टू अटर ट्रूथ। और वो जो है करेज कब आएगा, जब हमारी फियर से मुक्ति होगी। एंड एट द सेम टाइम ही टॉक्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग, कंसिस्टेंट परसिवरेंस, जब हम मेहनत से पीछा नहीं छोड़ें और हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। आई विल टेक अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।